Okay, let's start finally. Good morning to all of you, and we are having classes for the third consecutive day. Nowadays, a rare surprise, and also, as has been commented by Divyam, and that is back to pavilion. That's right. कल लेकिन फिर से शायद स्कूल से होगा, पता नहीं कल क्लास देंगे या नहीं देंगे, है ना? चलो, तो मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Messages from Divyam, Manan, Divyam, Karthik, Aryan, Akshit. अक्षित से इसकी मैथ्स की भी लगवा दो. वो तो जिस दिन जैसे वो लोग शेड्यूल बनाते हैं. देयर आर मेनी अदर थिंग्स आल्सो व्हिच इज गोइंग ऑन राइट नाउ. अभी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह ये सब, तो कई सारे इन्वॉल्वमेंट है. मे बी दैट कुड बी अ वे ऑफ एडजस्टमेंट. हमें मॉर्निंग फ्रॉम मैसेजेस फ्रॉम जयगर गोयल मनन आल्सो. ओके, मॉर्निंग क्लास में एंट्री बड़े स्टैगर्ड तरीके से होता है. इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. बाय द वे, अगर याद होगा, मुझे सडनली याद आया, is that उस दिन अगर याद होगा मनन ने एक सवाल पूछे थे, is that कि आज हम लोग जो यूज करते हैं ना माइक्रोफोन में, दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, है ना? और जब पहली बार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का वो किए थे, इन्वेंट कह लो, डिस्कवर कह लो, तो उन्होंने भी क्या पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज किए? नाउ दैट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मनन. तो उस समय याद होगा मैंने बोला था कि लाइक आई एम नॉट वेरी क्लियर या आई एम नॉट वेरी श्योर कि हिस्टोरिकली कौन सा पहले हुआ है. तो मैंने पता करके देखा था, इज दैट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री आल्सो, एंड दैट इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के मदर वाज डेफ, लाइक शी कुड नॉट हियर, and that's why Alexander Graham Bell was very interested right from his childhood regarding sound. उनको बड़ा इमोशनली वो लगता था कि देखो, कई बार ना कुछ चीजें हम लोग को पास होता है तो हम लोग उसका अहमियत, इम्पोर्टेंस या जो भी फील करो या जो भी बताओ, वो फील नहीं कर पाते हैं. अब जैसे मान लो आईज है, तो लाइक वी आर एक्सपीरियंसिंग आवर लाइफ, द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू लाइट. So that is because we have our eyes. But let's say अगर by chance अगर हम blind होते, तो यानी एक पूरे, like even I'm imagining कि like few for seconds just closing my eyes, that this entire world is not visible to me, let's say. So I would be actually not be able to experience the entire life as it should be. Similarly, बोलना is also another one, and ability to hear is another one. अगर मान लो हमें सुनाई बंद हो जाए, मतलब सुनाई देना बंद हो जाए, तो हमें बड़ा दिक्कत होगा. दिक्कत इन दिस सेंस कि we will be actually robbed of a lot of experiences that we can have about our surroundings without the ability to hear. So he was an emotional kind of a person. When scientists are generally like that only, mostly. ठीक है ना? So he was an emotional kind of a person, and he could understand what his mother was missing because she was not able to hear. इसलिए उनको साउंड के मामले में इंटरेस्ट बचपन से था, और उन्होंने इसलिए साइंस में जब मौका मिला रिसर्च करने का, तो उन्होंने साउंड का ही चूज किया. And then he went on to discover all those things. And if I'm not wrong, I might have to be corrected, but maybe एक बार और थोड़ा सा देख लेना. That's why married a deaf woman also, so that he could act as some kind of a, because he has experienced his mother being deaf, so he felt that he had the necessary sensitivity to probably maybe bring some positivity to another woman who was also deaf. I mean, so this is what I know. Interesting result. But as far as history is concerned, अब आ रहे हैं कुछ लोग, ये चलता रहेगा मुझे लग रहा है. As far as history is concerned, interestingly, piezoelectric device करीब समझ लिया, piezoelectric effect was discovered somewhere around 8-10 years before this thing. He discovered he started research on this telephony.
बट ही डिड नॉट यूज piezoelectric डिवाइस. बट देखो एक्चुअली होता क्या ना, कोई भी चीज अगर नया आता है ना चीज मार्केट में या रिसर्च में, तो उसको साइंटिफिक कम्युनिटी में भी स्प्रेड होने में टाइम लगता है. तो he actually never knew about piezoelectric device, though it was discovered in that same period of time only. But he never really used the piezoelectric device. He used a little different methodology, and that was using a liquid. So liquid with some acid on it. तो कुछ उसमें था, I mean, I'm not very sure about the entire mechanism, but ये कि वो liquid के ऊपर जब vibrations पड़ता है ना, तो reactions होता है और वही carry करता है, and that's how the detection used to be done, and that would in turn create a small variation in the current. ठीक है ना? So that was the mechanism used by Graham Bell, and not piezoelectric device as is used right now. Obviously, piezoelectric devices are much more accurate and much better. But I'm talking about what happened during his time. ठीक है ना? तो चलो, anyway, that was just a historical snippet. I mean, ठीक है ना? Now दिव्या में सेट कि उस समय डायलॉग कैसे मारते होंगे क्या? Okay. Your mother has sound ability or not? That would be the dialogue. अच्छा, you are talking about that Amitabh Bachchan movie dialogue कि मेरे पास माँ है. चलो, anyway, let's carry on. I mean, yesterday in the fag end we discussed about a question that was regarding magnetic field generated outside and inside the capacitor plate. तो एक काम करते हैं, उसी पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन दैट सपोज मैं डेटा बहुत ज्यादा चेंज नहीं करूंगा. लेट्स से इसका रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर. कल भी 4 ही दिया था शायद, तो ये 4 है, ये भी 4 है. लेट्स से ये प्लेट हो गया और ये प्लेट, दो प्लेट आमने सामने है और इसके एक्सिस को ज्वाइन कर देता हूं. ठीक है? और एक तार जो है ना इसमें से निकाल के ले जाता हूं. तो लाइक देयर इज अ वायर आल्सो, जैसे कल भी बताया था, वायर पे भी कुछ करंट वायर डाल देंगे. तो दिस वायर कैरी सपोज अ करंट ऑफ 40 एम्पियर्स. यानी 40 एम्पियर करंट इसमें है और साथ में दिया हुआ कि ये जो चार्ज है इसके पास, दैट Q इज इक्वल टू सपोज 10t स्क्वायर प्लस 30t. तो 10t स्क्वायर प्लस 30t. ठीक है? क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, जो कि हमने कल किया था, एंड लेट्स से 8 सेंटीमीटर. लेकिन आज मैग्नेटिक फील्ड निकालना नहीं है, आज उसका ग्राफ बनाना है. तो लाइक लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, this is suppose point 1 and this is point 2. So one is inside the region of the plate, other is outside the region of the plate. और तुमको बनाना है ग्राफ of variation of magnetic field versus position with time. ठीक है? और एक 1 पॉइंट के लिए और एक 2 पॉइंट. तो पॉइंट 1 के लिए, पॉइंट 2 के लिए. तो ये पॉइंट 1 के लिए बना दो. So how will the magnetic field vary? How will the magnetic field vary with time, within the region and outside the region? So within the region ये हो गया और outside the region. So how does the magnetic field vary? That's the question. Go ahead. Without some critical points, the graph, the nature of the graph, of course, you can draw without that also. That is not a big issue. But I would suggest that you draw the graph with some critical points also. Just मान लो starting में क्या होगा, at least that point, and then maybe the nature of variation, है ना? वो तो कर ही सकते हो. Jay Goyal has pointed out that आज तो participants कुछ ज्यादा ही कम है. Yeah, I know. अगर याद होगा मैंने एक बार एक कमेंट किया था that during radioactivity topic कि generally attendance ऐसे ही रहता है.
And I also remember, if you remember, मैं कमेंटेड कि हमारे प्रोफेसर कमेंट करते थे, ये भी मैंने मुझे याद है बहुत बताया था कि तुम लोगों का तो अटेंडेंस ऐसे होगा, शुरू में तो ऐसे होगा, तो शुरू में थोड़े से नए नए आते हैं लड़के, सब शरीफ होते हैं, कॉलेज में नया है तो थोड़ा सा 2-4 क्लास 10 क्लास करते हैं, और उसके बाद ऐसे। So these drops are either 2, 4, 6, 8, varying in number, I mean, according to different classes. So that used to be the attendance with time graph in colleges. तो स्कूल में थोड़ा सा कर्व है, कॉलेज में it drops by pairs. चलो खैर, सत्यमेव आज की हमारे स्कूल में कोई नया बच्चा आया था, वो भी कभी नहीं दिखा उस दिन के बाद। नहीं, उस दिन के बाद एक दो बार मैंने देखा है, मैं भी अटेंडेंस रखता हूँ, तो मेरे उसमें भी अटेंडेंस में सब एब्सेंट ही है, बट एक दो बार देखा है, मतलब आई थिंक टोटल 3-4 बार आया है शायद। इसका नाम क्या है? श्रेयांश। एक चीज बताओ, अभी सत्यम है अंदर और एक सत्यम गुप्ता वेटिंग रूम में भी है, तो यू आर लॉगिंग बाय 2 डिवाइसेस और व्हाट? सर आई एम चेंजिंग माय डिवाइस। अच्छा चलो ठीक, मुझे लगा पूरे साल में तो कोई हादसा हुआ नहीं इस क्लास में। कहीं एंड में कोई हादसा ना हो रहा है। क्योंकि कई क्लास में यही सब प्रॉब्लम्स हुआ है कि कुछ और नाम से आ गए एंड ऑल। चलो खैर, एनीवे नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। हमें अगर मैं बाहर देखता हूं तो पहले तो एक काम करते हैं, चार्ज का वो निकाल लेते हैं, करंट, इफेक्टिव करंट। हमें इफेक्टिव करंट जो इस पार्ट में होगा वो हो जाएगा dq/dt। तो लेट dq/dt is equal to 20t plus 30, that's the effective current। तो अगर t is equal to 0 पे होता तो 30 और ये 40 है, तो यानी 70 हो जाएगा वो। So at t is equal to 0, I effective will be equal to 30 plus 40 यानी equal to 70 ampere, and then it would grow linearly। 20t है तो like वो slope of 20 करके बढ़ेगा। चलो ठीक है, that's okay। तो therefore जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बोलते हो जाएगा 70 बाय 2 पाई, तो लाइक इसको 2i बाय आर बोलते हैं 8 सेंटीमीटर, यानी 8 बाय 100 या 1000 to 8 × -7 है, डिवाइडेड बाय दिस थिंग, यानी 14 बाय 8 into 10 to the power -7, तो ये वाला हो गया, और ये हो गया 10 to the power 3, है ना, तो 10 to the power -4, 10 to the power, तो 14 by 8, तो यानी हो गया 7 by 4, यानी 1.75 is equal to 1.75 into 10 to the power -4 Tesla। So maybe you can write it as 175 micro Tesla। I hope I'm right। ठीक है, एक बार चेक कर लो, तो यानी आ जाएगा 175 माइक्रो टेस्ला। एक बार चेक कर जरा कैलकुलेशन, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई 2y कर दिया, सो दैट यू विल बाय आर, आर होगा 8 सेंटीमीटर। आई थिंक इट्स ओके, 175 माइक्रो टेस्ला। ये हो गया एट t इज इक्वल टू 0। बट उसके बाद क्या होगा ना, करंट जो होगा उसके बाद होगा 70 प्लस दिस 20t विल आल्सो नाउ कम इनटू बीइंग, यानी उसके बाद हो जाएगा एट एनी टाइम t। So I'm talking about point 2 now। 2 पे क्या हो रहा है उसका कैलकुलेशन, तो at any, this is for t is equal to 0, at t is equal to 0, at any other time b क्या हो जाएगा ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई into 2 into 20t plus 70 by 8 by 100,
तो यानी 175 माइक्रो टेस्ला से स्टार्ट हुआ है ना, 175 माइक्रो टेस्ला से स्टार्ट हुआ, माइक्रो टेस्ला स्टार्ट होगा और उसके बाद लीनियरली ग्रो करेगा ऐसे, तो लाइक 0.2 पे तो ये आ रहा है 175 माइक्रो टेस्ला, ये माइक्रो टेस्ला में कर रहा हूँ, उसके बाद ऐसे ठीक है ना, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट 2। 1 पे क्या होगा, है ना, तो 1 पे ये होगा कि पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा करंट कितना है, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट हमें देखना पड़ेगा, या तो वो देख सकते हैं और नहीं तो ये भी कर सकते हैं कि पूरा करंट लेके इनटू स्मॉलर बाय कैपिटल आर, याद है ना, वो भी हम कर सकते हैं, पर उसके लिए फिर मुझे सरफेस का निकालना पड़ेगा, यानी एग्जैक्टली इस पॉइंट का निकालना पड़ेगा, और नहीं तो कल जो हम लोग कर रहे थे, कल एकदम क्लास खत्म हो गया था तो वो बीच में रह गया, अगर मैं कल वाला देखता हूँ तो इन दैट केस 1 क्या एनालिसिस होगा, इस पे कोई डाउट तो नहीं है? अब 1 पे देखते हैं, 1 में मतलब हो गया इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट पे अगर मैं देखता हूं तो इन दैट केस कैसे होगा ना, t इज इक्वल टू 0 पे म्यू नॉट आई बाई आई कितना होगा, है ना, आई हो जाएगा एक तो तुम्हारा वो 40 एम्पियर, ट्वाइस कर दो 40 प्लस, और ये 8 की जगह हो जाएगा 2/100, ठीक है ना, 40 प्लस, अब देखो कितना करंट होगा इसके अंदर ना, हमें पता है कि चार्ज जो भी है ना, वो 4 सेंटीमीटर रेडियस पे है, तो 2 सेंटीमीटर रेडियस पे क्या होगा ना, 1/4 हो जाएगा चार्ज, है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स होगा, चार्ज होगा, एंड देयरफॉर करंट होगा, वो क्या होगा 1/4 हो जाएगा, तो कितना होगा ना, टोटल चार्ज की वजह से टोटल करंट हो गया ये, इसका 1/4 कर दो तो क्या होगा, ये 7.5 हो जाएगा, ये 5, यानी 1/4 ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय 4, ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 0 आई इफेक्टिव क्या होगा फिर, एक तो ये 40 एम्पियर होगा प्लस ये 30/4, यानी अब हो जाएगा 7.5, यानी बेसिकली 47.5 आंसर, यानी म्यू नॉट आई बाई, है ना, 2i 40 प्लस 7.5 बाई ये, ठीक है ना, ये वो चेक कर लो, तो कितना, अच्छा 2 तो कैंसिल कर दिया जाए, 2 कैंसिल हो गया, यानी 10 to the -5 हो गया, यानी 47.5 into 10 to the power -5, तो माइनस का तो 475 आ, है ना, इज इक्वल टू 475 माइक्रो टेस्ला, जस्ट चेक द कैलकुलेशन वंस, उसके बाद क्या होगा, है ना, उसके बाद हो जाएगा 47.5 यहाँ पे आएगा, तो एट 1 होगा, तो 20t और 8 की जगह ये हो जाएगा 2, ये 2/100, और ये हो गया 20t/4 भी हो जाएगा, क्योंकि 1/4 करंट लेना है, तो 5 टाइम्स t होता है प्लस 47.5, ठीक है, दिस इज व्हाट इज गोइंग, तो यानी कुछ मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसका स्लोप मान लो ज्यादा होगा, इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसका पहली बात तो स्टार्टिंग ज्यादा पे है 475, ये अगर 175 है तो 475 मीन समवेयर हियर, लेकिन इसका स्लोप कम होगा, so that's how the graph will compare, ठीक है ना, देख लो, that's how the graph is now going to compare, तो एक का स्लोप ज्यादा होगा, और 2 वाले पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है, और 1 वाले पॉइंट पे स्लोप कम है, 2 वाले पॉइंट पे स्टार्टिंग कम है, और 1 वाले पॉइंट पे स्टार्टिंग ज्यादा है, ठीक है, अच्छा ये तो खैर हमें पता है वैसे भी,
is that कल भी ग्राफ बनाया था, अगर याद होगा, कल भी हमने जब ग्राफ बनाया था तो कुछ ऐसे आया था. So like same magnetic field will happen at 2 points. ये भी है, और यहाँ पे समय के साथ भी वेरी कर रहा है, तो वो थिंग्स आर देयर. ठीक है ना? चल, आई थिंक दैट वाज द ग्राफ में, जस्ट हैव अ लुक. तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. अच्छा अक्षित, लास्ट क्लास में, मतलब कल वाले में एकदम जाते जाते तुम कई सारे सवाल पूछ रहे थे, तो लाइक एट दैट टाइम तो क्लास वाज ऑलमोस्ट ओवर, तो शायद ना कवर नहीं हो पाया. बट आई होप विद दिस क्वेश्चन नाउ थिंग्स आर अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, और अगर इसके बाद कुछ रहता है तो मे बी यू कैन आंसर. यस अक्षित, चलो ठीक. Okay, so I think now we can rub it off. So that was about your displacement current. That was about your displacement current and its role in magnetic field in these type of cases. Okay, I hope you understood now. लेकिन ध्यान रखना, ये सारे ग्राफ्स जो मैंने बनाए थे ये थे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना? और अगर पोजीशन वाला था तो वो ये वाला ग्राफ था, छोटा वाला बनाया था ऐसे करके, तो वो अलग है. ठीक है, सो लाइक डोंट मिक्स देम अप. ठीक है, चलो इसके बाद एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, इज दैट how is magnetic field electromagnetic waves generated, है ना? तो मैक्सवेल, इंटरेस्टिंगली मैक्सवेल predicted about electromagnetic waves long back, means before even electromagnetic waves were discovered. ठीक है ना? Based on his own analysis of how electric field can variable electric field can generate magnetic field, and that variable magnetic field can in turn generate an electric field, so they go on generating each other. उसके लिए चाहिए क्या? Now he said that any oscillating or you can say accelerating charge produces EM waves. ठीक है? Now you might say, what do you mean by this? तो थोड़ा सा एक चीज समझो जरा. सपोज यहाँ पे एक चार्ज Q है और यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले, तो एक जनरलाइज चीज बताना चाहूंगा, इज दैट व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, तो चार्ज जब रेस्ट पे होता है, इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. When charge moves with constant velocity, it produces an electrostatic field plus magnetic field. और अगर चार्ज मूव करता है विद एक्सेलरेशन, तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है. Now that is what is going to happen. Now you might say कैसे होता है? तो the answer is that let us take this charge, और मान लो इसको मैं ऑसिलेट करा रहा हूं, तो सपोज मैं इसको ऐसे करके ऑसिलेट करा रहा हूं, इधर से इधर, इधर से इधर. So this charge is moving right, then back to the same position, left, है ना? Again back to the same position, right, back to the same position, left and so on. So ऑसिलेट कर. अब अगर मान लो तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो, उसकी वजह से क्या होगा? वो भी अप डाउन होगा. क्यों? कि चार्ज अगर दूर चला गया तो फील्ड घटेगा, फिर चार्ज जब पास आ गया तो फील्ड बढ़ गया. This is what is going to happen somewhat. अच्छा, ये डिस्टेंस अगर तुम कम लेते हो, वैसे तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इंस्टेंटेनियस, ये थोड़ा ध्यान रखना. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इंस्टेंटेनियस का मतलब समझो. सपोज मैं एक काम करता हूं, 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट लेता हूं. तो ध्यान से सुनना, 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस पे सपोज मैंने एक पॉइंट लिया. 3 × 10⁸ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिकॉज दैट इज द टाइम इट रिक्वायर्स फॉर लाइट टू रीच दैट पॉइंट इन 1 सेकेंड, है ना?
तो यहाँ पे अगर मान लो तुम सडनली एक चार्ज प्रोड्यूस कर देते हो, लेट्स से आई मीन सम वे, ये थ्योरेटिकल डिस्कशन हो रहा है, मान लो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट था, लेकिन सडनली कुछ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, लेट्स से, again as I said लेट्स से, तो इन दैट केस जिस मोमेंट पे, ध्यान से सुनना, जिस मोमेंट पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, उस मोमेंट पे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यू माइट से क्यों, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फील होने में 1 सेकेंड का इंटरवल आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां तक एक्ट करने में, ट्रेवल करने में टाइम लगता है, समझो ना? सो दैट इज व्हाट स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए मैंने जानबूझ के क्या किया, बहुत नियर बाय ले लिया, मतलब यहाँ पे कमरे के दूसरे कॉर्नर पे। उससे फायदा क्या होगा ना, वो जो इंटरवल है वो अब नेग्लिजिबल हो गया, तो दैट नीड नॉट बी काउंटेड। कहाँ 3 × 10⁸ मीटर्स और कहाँ 2 मीटर है, तो लाइक 10⁻⁻8 सेकेंड्स के ऑर्डर में आएगा, तो दैट आई थिंक इज प्रीटी नेग्लिजिबल। लेकिन एक चीज है कि अगर मान लो यहाँ पे मैं चार्ज को आगे ले जाता हूँ, मतलब जैसे ये चार्ज हो गया और ये पॉइंट हो गया, तो अगर यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो जैसे चार्ज को पीछे ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और क्योंकि डिस्टेंस बहुत करीब है, 2 मीटर 3 मीटर, तो यानी उसको मैं इंस्टेंटेनियस मान सकता हूँ। I don't think that's a problem। तो यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, ये देखो ऐसे, मैं थोड़ा एक्सैगरेटेड करके दिखा रहा हूँ, फिर ऐसे, देखो अब चार्ज करीब आ गया तो बढ़ गया, फिर चार्ज मीन पोजीशन पे, फिर चार्ज दूसरे एंड पे, यानी इस पॉइंट पे अगर देखोगे ना तो एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो यानी यहाँ पे वेरिएबल फ्लक्स भी होगा। क्यों, अभी कल परसों यही तो एनालाइज किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो देयरफॉर वहां पे अगर देखोगे तो वो जो वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, उसके कारण देखना एक वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड होगा तो दैट इन टर्न विल आल्सो प्रोड्यूस अ वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। यानी क्या होता है, एक सस्टेनेबल, अगर मान लो ये चार्ज कंटीन्यूअसली मूव कर रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा, एक सस्टेनेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी क्या हो रहा है, एक दूसरे को जनरेट करता रहेगा, तो यानी नेट रिजल्ट क्या होगा, फाइनली जो नेट रिजल्ट होगा वो ये होगा दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड plane, the magnetic field plane and the direction of propagation are mutually perpendicular। क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है वो तो हमें पहले ही पता था, कैसे, मैं याद करके देखो, हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि अगर मान लो सपोज इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर, तो अगर मान लो यहाँ से ये अगर कैपिटल आर है मान लो, और अगर मान लो यहाँ पे स्मॉलर डिस्टेंस दूर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, -z एक्सिस। लेकिन याद करके देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक वायर लगाता हूँ, ठीक है ना, और मान लो फील्ड B इज सपोज इंक्रीजिंग, तो बता सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा इस वायर में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेडियस r इज इन विच डायरेक्शन, बताओ जरा। ये जो रेडियस स्मॉलर है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ये कौन सा डायरेक्शन होगा, बताओ जरा, कौन सा डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा, बोलो। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, बढ़ता जा रहा है, तो इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेडियस r इज इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, कार्तिक सेज कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, मनन डंगवाल एंटी क्लॉकवाइज, मनन भी एंटी क्लॉकवाइज, चलो ठीक है। आई मीन अगर ये बढ़ता जाएगा तो उसको अपोज करना है, यानी बाहर की तरफ जनरेट करना पड़ेगा, यानी ऐसे, यानी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, लेकिन इन व्हाट, एक्स वाई प्लेन, भाई फील्ड तो ऐसे होगा, तो देयरफॉर इट इज इन एक्स वाई प्लेन।
है या नहीं? तो therefore isn't E vector perpendicular to B vector? यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से, अगर मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली जब इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। दैट्स व्हाई आई एम कंक्लूडिंग दैट दे विल बी व्हाट अ परपेंडिकुलर लाइक दिस। इन फैक्ट वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा या v कैप, वो पता है क्या होगा? E क्रॉस B, ये होगा उसका जो डायरेक्शन होगा ना, वो होगा E क्रॉस B का कैप। Maybe you can put it as E cap क्रॉस B कैप also। क्यों? क्योंकि ये तो आप उससे परपेंडिकुलर होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर करोगे तो ऑब्वियसली 90 डिग्री तो वन ही होगा, है ना? तो दिस इज व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। यानी अब जरा सोचो, सपोज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि लेट अस से दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेट अस से द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, या दिस इज मैग्नेटिक फील्ड सपोज, ठीक है ना? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मान लो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन या ये रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड है, रेड वाला, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन। तो लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन इज इन द xz plane and magnetic field variation is in the xy plane। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का सपोज मैं ड्रॉ करता हूं ब्लू में, बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा? बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव क्या होगा इसके, बताओ जरा। इस केस में बताओ जरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या आएगा? मैं एक चीज देख रहा हूं कि आज मेरे नेट पे भी हाँ एक सेकंड मैंने मोबाइल डेटा पे चला रहा हूं। कार्तिक has given an answer कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो होगा प्लस एक्स डायरेक्शन। और किसी कोई डायरेक्शन का आंसर है? देखो इसका जो डायरेक्शन होगा ना वो होगा माइनस एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन नहीं होगा। शिवम यू आर राइट, कार्तिक थोड़ा सा करेक्शन कर लो। देखो कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जेड है उस समय मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या है? प्लस एक्स है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड जे कैप, और इस वक्त का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला उस समय वो है के कैप। या तो इससे निकालो, तो मैंने क्या बोला? E क्रॉस बी यानी के क्रॉस जे, ठीक है? तो देयरफॉर इस केस के हिसाब से अगर चलोगे तो क्या होगा ना? के क्रॉस जे। तो याद करके देखो, आई जे के, ये होता है इसका ओरिएंटेशन। तो के क्रॉस जे यानी क्या होगा? माइनस आई, यानी व्हाट इज द डायरेक्शन? द माइनस एक्स एक्सिस। Therefore, the direction of propagation of this electromagnetic wave is in the negative x direction, not positive x direction. ठीक है? Karthik has asked, is V defined as E cross B? No, I'm only saying that V vector direction will be in the direction of E cross B. That's what I'm trying to say. ठीक है ना? तो इससे हिसाब से देखो करके देखो।
अच्छा, अगर तुम इससे करोगे तो इन दैट केस रिवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड है माइनस जे कैप, और उसी टाइम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो है माइनस के कैप। तो बस दैट्स इट, है ना। तो इससे जो है तुम्हारा आंसर मिल रहा है that in this particular case the electromagnetic wave is traveling in the negative x direction, ठीक है ना। अच्छा, however if it is traveling in the positive x direction then what happens, है ना। तो if an electromagnetic wave traveling in positive x direction, if that is the case, then E will be given by E naught sine omega t minus kx. Similarly, B will be given by B naught sine और अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा ये वाला, इन दैट केस यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब जो है कार्तिक वाज आस्किंग की फिर मनन आस्क की व्हाई नॉट बी क्रॉस सी। नहीं, वो तो देखा गया ना कि भाई कैसे डायरेक्शन में ट्रैवल होता है, तो वो देखा जा रहा है कि ई क्रॉस बी से हो रहा है ना, तो लाइक मैच कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अगर मान लो तुमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये तो डायरेक्शन दे रहा है, दिस इज गोइंग टू गिव ओनली द डायरेक्शन, बट अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या होता है, द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय ई नॉट अपॉन बी नॉट। एक्चुअली क्या ना, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बेसिक लेवल पे है, थोड़ा और एडवांस करोगे ना तो ये सारा डिराइव होता है, थोड़ा और एडवांस लेवल पे अगर जाओगे तो ये सारा डिराइव होगा, और तब जाके तुमको पता चलेगा क्या होता है। जैसे मैं भी एक फॉर्मूला दूंगा, अब वो फॉर्मूला अभी तो फिलहाल तुम लोगों को जस्ट फॉर इट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट यू नो एट हायर फिजिक्स if you are interested in that, or maybe even in engineering courses also there are sometimes higher physics courses as well as electives, तो उसमें देखना तुमको पूरा डिटेल बताया जाए। एज ऑफ नाउ तो क्या कर सकते हो, तो C in air और वैक्यूम क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बट अगर कोई मीडियम में होगा तो C इन अ मीडियम तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर म्यू नॉट epsilon r epsilon naught. So with the help of this you can also get an idea of the refractive index. So refractive index क्या होता है, c dash कह लो, चलो तो refractive index क्या होता है, c by c dash, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो refractive index क्या होता है ना, अंडर रूट ऑफ म्यू r into epsilon। ये देख रहे हो कैसे सारा चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, that's how। तो यानी C in air और वैक्यूम इसका ये फॉर्मूला है, C in any medium ये फॉर्मूला है, और क्योंकि हमें पता है that for all media we know that mu r epsilon r is greater than 1 and mu r is either greater than 1 or slightly less than 1। जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो म्यू आर होता है इट इज स्लाइटली लेस देन 1, लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे तो ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो लाइक दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू विल सी इन एनी मीडियम पर से। कार्तिक आस्क्ड कि क्या E और B मस्ट बी इन साइन फंक्शन, ना ऐसे कुछ नहीं, कॉस कर लो कोई बात नहीं, वो तो कैसे स्टार्ट कर रहे हो उसके ऊपर। अगर मान लो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड और जीरो मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट करोगे, आई थिंक इट्स बेटर दैट टेक इट साइन फंक्शन। और अगर मान लो हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करोगे, तो अब तो मैंने मिटा दिया, बट अगर वो जो ग्राफ मैंने बनाया था मैंने जीरो से बनाया था, अगर देखा हो मैंने जीरो से स्टार्ट करके ऐसे बनाया, इसलिए मैंने साइन फंक्शन लिखा, बट ये कोई मस्ट नहीं है। You can just shift the axis half of the half नहीं lambda by 4।
अगर लैम्डा बाय 4 एक्सिस को आगे शिफ्ट कर लो तो साइन की जगह कॉस कर लेना, नो इश्यूज एट ऑल। साइन होना कोई मस्ट नहीं है, दिस कैन बी कॉस आल्सो। तो एज आई सेड विल डिपेंड ऑन हाउ यू आर स्टार्टिंग, वेयर यू आर स्टार्टिंग एट, ठीक है ना। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्मूला। इसी पे ही जनरली देखना मेंस में क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है ना व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज योर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जो आता है वो कैसे है ना। तो अगर देखोगे कापा आरएमएस, आरएमएस इसलिए क्योंकि ई तो वेरी कर रहा है ना, बी भी वेरी कर रहा है। तो लेकिन ये क्या, अगर एवरेज देखते हो तो क्या आएगा, कापा आरएमएस विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर, तो व्हिच इज ई नॉट बाय रूट 2 एक्चुअली, तो व्हिच इज एक्चुअली इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट बाय रूट 2 का स्क्वायर। और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली कापा आरएमएस मैग्नेटिक फील्ड will be equal to half epsilon naught b RMS का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 1/2 म्यू नॉट b RMS का स्क्वायर, तो which will be equal to 1 upon 2 म्यू नॉट into b नॉट by रूट 2 का स्क्वायर। तो एक चीज ध्यान रखना इज दैट ऑब्वियसली फिर kappa of the entire electromagnetic wave यानी एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फुल, ऑब्वियसली इसका भी आरएमएस ऑफ द एंटायर ईएम वेव क्या होगा, कापा आरएमएस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस कापा आरएमएस मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन लेकिन ओके, नाउ कार्टियस आस्क्ड अनदर क्वेश्चन आल्सो। अच्छा, अक्षित has also asked कि वो E नॉट और B नॉट जिस प्लेन पे लिए उसके बारे में बता दो। अभी बताता हूँ। कार्तिक also now asked can one of them be sin and the other cos। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक वो है, तो पहले एक काम करो, पहले या तो दोनों साइन में लिख लो या तो दोनों कॉस में लिख लो, पहले यही करो अगर पूछा जा रहा है, और फिर एक साइन को कॉस कर लो। साइन को कॉस करना, कॉस को साइन करना, इट्स वेरी इजी, नाउ वी नो दैट। तो वो सब कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर पता क्या होगा, एक फेज आएगा, देख है ना, एक फेज आएगा, मतलब साइन और कॉस अगर करते हो तो देखना एक फेज ऑफ π/2 वगैरह एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उतना कर लेना। सो इट्स योर विश कि तुमको फॉर्मुलेशन साइन के टर्म्स में लिखना है कॉस के टर्म्स में, दैट्स योर विश टोटली, ठीक है। अक्षित का जो क्वेश्चन है वो है ई नॉट एंड बी नॉट जिस प्लेन में लिए थे, एक बार वो बता दो फिर से। नहीं, प्लेन में लेना कोई कंपल्सन नहीं है, वो तो डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। चलो मैं एक और एग्जांपल पूछ लेता हूं, दैट विल हेल्प यू। ये पहले देख लो, और एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ऑल्सो ऑलवेज क्या होगा, द कापा आरएमएस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू kappa RMS magnetic field. So therefore, kappa RMS of the entire electromagnetic wave can also be written as 2 times kappa RMS E is also equal to 2 times kappa RMS E. ये जो इतने सारी चीजें मैं कह रहा हूं वो इसलिए क्योंकि अगर तुम पिछले 10 साल में देखोगे तो एक या दो क्वेश्चन आया हुआ है बस इसी चीज, कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं। यू कैन सी देयर इज अ वेरी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। वो तो क्वेश्चन में ई नॉट बी नॉट दिया रहेगा, तुमको बस म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट वगैरह सब कुछ चीजें करना है। सो नथिंग वेरी टफ है, नथिंग वेरी टफ है, तो दैट्स ऑल, ठीक है ना। नाउ यू माइट सी ये दोनों बराबर कैसे बता रहे हो, है ना, दोनों बराबर कैसे बता रहे हो। वो एक्चुअली पता है क्यों बता पा रहा हूं, बताता हूं मैं। अगर मान लो तुम जैसे ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है भाई, ये क्यों, है ना। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं जो है ना करता हूं इस तरीके से कि लेट मी राइट
kappa RMS electric field upon kappa RMS magnetic field, तो क्या होगा ना, यही आएगा है ना। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर बाय 2 अपॉन हाफ एप्सिलॉन नॉट B नॉट स्क्वायर बाय 2। तो ये सब तो मोस्टली कैंसिल ही हो रहा है, सॉरी 2 मिनट, ये तो मोस्टली कैंसिल हो रहा है, 2 मिनट ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ रहा है ना, E नॉट स्क्वायर बाय B नॉट स्क्वायर इनटू म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, बट E नॉट स्क्वायर बाय B स्क्वायर इज नथिंग बट C स्क्वायर, और C इज 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट, तो ये क्या होगा, ये तो 1 बाय C स्क्वायर होगा, यानी C स्क्वायर इनटू 1 बाय C स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कापा आरएमएस इलेक्ट्रिक फील्ड और कापा आरएमएस मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, यानी दोनों बराबर होगा। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, बराबर। अब ये क्वेश्चन मार्क तो हटा दिया जाए, इसमें हटा दिया जाए, है या नहीं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जस्ट टू आंसर व्हाट वाज बीइंग आस्क्ड बाय अक्षय तमिन, तो या आंसर तो नहीं, क्वेश्चन के थ्रू इसको डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज, लेट मी गिव सपोज लेट मी गिव, एक्चुअली इस चैप्टर के साथ ना थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाता है, इस चैप्टर के साथ थोड़ा सा इनजस्टिस इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो कुछ चीजें मैंने असर्ट किया, ये जो मैंने कुछ चीजें असर्ट कर लिया ना कि स्पीड ऑफ लाइट होता है E नॉट बाय B नॉट, फिर हो जाता है 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या मीडियम में ऐसे होता है, दीज आर ऑल डिराइवेबल स्टफ, बट देन इतने डेप्थ में एक्चुअली इस चैप्टर में है नहीं हम लोग के सिलेबस में, तो इसलिए हमें थोड़ा स्किप कर करके सिर्फ एंड रिजल्ट बताना पड़ रहा है। It's not a very comfortable thing to do, I mean, especially in physics, I mean, where we always say कि without logic मत विश्वास करो, but अब एक दो चैप्टर में ऐसे हो जाता है, I mean, like if you go into that depth, then you have to do a lot of extra stuff, I mean, which sometimes is a little discouraging, तो इसलिए हम लोग उस पे जा नहीं रहे, तो unfortunately, अच्छा इसलिए शायद ये JEE एडवांस में पूछते नहीं है चैप्टर, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है जो सिलेबस में। भाई मैं तो कहता हूँ सिलेबस कम रखो, लेकिन जितना रखो उसको इतना अच्छे से लॉजिकली कनेक्ट करो कि कम से कम उसमें बिल्कुल मजबूती से कंसेप्ट बने। अब ये तो देखो सारा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, इसके बाद जो बता रहा हूँ वो तो और ऊपर से बट एनीवे, इन द मीनवाइल थोड़ा सा वो कर लिया जाए, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन वाला। चलो ठीक है, तो लाइक लेट अस से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड लेट अस से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर, फिर इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सपोज इधर, 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 तो ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, पता नहीं ब्लू दिख भी रहा है या नहीं, और रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इसमें बताओ वेलोसिटी का डायरेक्शन, बताओ इसमें क्या होगा, इसे बताओ जरा वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। चलो ये E है, ब्लू वाला, और रेड वाला B है। ये जब तक डबल टर्न ना करो ना रेड और ब्लू को, तो दिखता ही नहीं कि रेड है, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब मैंने डबल मार्क किया ना, अब देखो तुमको दिख रहा होगा रेड और ब्लू।
ओके, आंसर आ चुका है. Shivam, Aryan and Karthik has given minus y, minus j, minus y. Manan has also given minus j. चलो ठीक है, that's right. तो E क्रॉस B क्या हो गया ना, E क्रॉस B, तो यानी बेसिकली हो गया, ये तो x है, ये z है, ये y है, तो बेसिकली हो गया I क्रॉस j, सॉरी k, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जा रहे हैं, माइनस j, यानी ये नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है. So this is the direction of electromagnetic wave. Lost it. It is coming down actually. ऐसे आ रहा है. So that is the direction of that is the nature of direction in the electromagnetic wave. ठीक है ना? That's right. Now Viral has also given the right answer. बिल्कुल सही आंसर दिया. ठीक है, एकदम सही है. अच्छा देखो, ये जो चैप्टर है, as I said, इसमें एक तो वो एनर्जी वाला बताया मैंने, है ना, और डायरेक्शन बता दिया मैंने. इसमें देखो दो तीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट रिलेटेड आ सकता है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सारे बेसिक फीचर्स मैंने बता दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीड, डायरेक्शन, है ना, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ओवरऑल सब बता दिया मैंने. अब मैं पूछूंगा या अब मैं बताऊंगा अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी एक हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट रिलेटेड, एक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलेटेड, चाहे वो डायरेक्शन और एनर्जी हो, चाहे और भी कुछ चीज क्यों ना हो, है ना, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, या जो भी है, व्हाटएवर. एक लास्ट चीज आता है, as I said in main seven, and that is a list of the electromagnetic waves, यानी EM waves actually. EM waves का जो लिस्ट आता है, अगर तुम इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का देखते हो, तो लाइक इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का देखते हो, है ना, तो इन दैट केस इट स्टार्ट्स विथ रेडियो वेव्स एट वन एंड. तो ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, ये हो गया इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ये हो गया इंक्रीजिंग वेवलेंथ. जैसे रेडियो वेव्स का वेवलेंथ मीटर किलोमीटर में भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंगली कम होगा, ठीक है ना. तो यानी फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ कम. तो इस तरफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और इस तरफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. तो अगर देखोगे इट स्टार्ट्स विद रेडियो वेव्स. Interestingly, radio waves also has a checkered history. Radio waves was interestingly first practically devised by a scientist who was working in Calcutta University, and that is J.C. Bose. And by the way, he is not that scientist who was responsible for that boson. बोसन के लिए ये नहीं है, बोसन वाले जो साइंटिस्ट वो अलग है, वो है एसएन बोस, सत्येंद्रनाथ बोस. ये है जेसी बोस, दैट इज जगदीश चंद्र बोस, ये अलग है. तो बोस कई बार एक ही हो जाता है, बट ये दो अलग अलग बोस है. He also discovered something called as a crescograph. J.C. Bose having discovered a crescograph. Crescograph is basically used to follow the growth and development of plants. It's biology related. Okay? But interestingly, he was a very versatile scientist. So like उन्होंने physics में radio waves का transmission पहली बार practically demonstrate किए. So he first demonstrated about radio waves. First to demonstrate about radio waves practically. But you know what? There is an interesting history, and that is, उन्होंने जिस टाइम ये रेडियो वेव्स प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किए थे कलकत्ता में, उसका रिकॉर्ड भी है कि किस दिन किए थे, क्या क्या डिवाइस यूज हुआ था, प्रोसेस वगैरह सब है. लेकिन उसके कुछ साल बाद, उस टाइम पे नहीं, उसके कुछ साल बाद मार्कोनी got the Nobel Prize for what? Practically demonstrating radio waves. So this is fascinating कि रेडियो वेव्स जिसने एक्चुअली पहली बार प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, और नोबेल प्राइज मिला उसके कुछ साल बाद किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, या कह सकते हो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट, एंड दैट इज मार्कोनी.
इंटरेस्टिंगली और एक चीज सुनो, यू नो आई एम फ्रॉम दुर्गापुर। हमें तो दुर्गापुर में जिस स्ट्रीट में मैं रहता हूँ, मतलब मेरा घर अभी भी घर है बट वो लॉक इन किया, कभी कभी जाते हैं आते रहते हैं, तो उस स्ट्रीट का नाम है मार्कोनी। सो माय एड्रेस इज मार्कोनी एवेन्यू। सो इट्स अ वेरी आयरनिकल थिंग। चलो खैर, he got the Nobel Prize and he was robbed of the Nobel Prize. And what, do you know what is the reason? The reason is that Nobel Prize की जो चार्टर है उसमें उन्होंने कुछ रूल्स लिखा, जैसे बहुत सारे हैं, ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज चार्टर, हमें कि ये रूल्स फॉलो होगा एंड ऑल। जैसे एक रूल है, ओनली अ लिविंग पर्सन कैन गेट नोबेल प्राइज। ओनली अ लिविंग पर्सन कैन गेट अ नोबेल प्राइज, अ डेड पर्सन कैन नॉट। मतलब देखो, जैसे आइंस्टाइन को दे दिया गया नोबेल प्राइज, बट मान लो किसी वजह से नहीं मिला। जैसे मैं एक फेमस एग्जांपल का बताया था, अगर याद होगा, थॉमस अल्वा एडिसन, वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द, एक्चुअली ही इज टिल डेट द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर, लेकिन उनको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। जो भी है, व्हाटएवर, ये सब कंट्रोवर्सी चलते रहते हैं। तो वन ऑफ द क्राइटेरिया इज दैट ही मस्ट बी अ लिविंग पर्सन, ही कैन नॉट बी अ डेड पर्सन। एक सेकेंड इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया इज दैट only discoveries which have been patented, now that is the rule, which have been patented will be only considered as entries for Nobel Prize. क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हर कंट्री में देखो रिसर्च चलता रहता है, हर कंट्री में रिसर्च चलता रहता है। तो हर कंट्री क्या करता है, हर साल अपने जो अच्छे अच्छे रिसर्च हुए नए नए, उनका जो थीसिस पेपर है या जो भी पेपर सबमिशन होता है वो भेज देते हैं स्वीडन। स्वीडन इज वेयर अल्फ्रेड नोबेल वाज फ्रॉम एंड that is where the prize is given from, ठीक है ना। तो स्टॉकहोम या कुछ ऐसी जगह जो भी है, whatever I'm not remembering correctly, but वही भेजा जाता है और वही लोग एनालाइज करते हैं, but only those entries are considered which are patented. अब जेसी बोस के जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला कि भाई देखो, तुमने नया चीज डिस्कवर किया, वो किया है, उसको पेटेंट कर लो, पेटेंट कर लो। लेकिन उन्होंने पेटेंट नहीं करा है। व्हाट वाज द रीजन? Reason is that he was a little bit of a religious person also, semi-religious person kind of, और वो थोड़ा सा वो गीता वीता, मतलब ये सब चीजों पे थोड़ा सा वो करते थे, यकीन करते थे, उनके जो सोच है या फिलोसॉफी है वो यकीन करते थे। तो उन्होंने बोला, देखो, what I have done is basically knowledge, knowledge। और गीता का एक सार ये होता है कि दुनिया में हर चीज का कॉस्ट हो सकता है, लेकिन knowledge should always be free। I mean, there are of course many tenets and so on, but उनका ये मानना था कि नॉलेज फ्री में होना चाहिए। पेटेंट करने का मतलब ये हो गया कि उसके साथ मनी इन्वॉल्व हो जाता है। क्यों? ये वो पेटेंटेड चीज अगर कोई भी यूज करना चाहेगा तो इन दैट केस इसको मनी देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो बोला कि नहीं, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मैं इसको नॉलेज के फॉर्म में समाज के सामने, सोसाइटी के सामने रख रहा हूँ, और जिनको इसको और आगे बढ़ाना होगा, इसके और रिसर्च करना है, करने दो। व्हाई शुड आई बिकम some kind of a money person की जैसे वो रिसर्च करेगा कुछ तो यानी मुझे पैसे देना पड़ेगा, या कोई कंपनी उस पे कुछ काम करेंगे तो मुझे पैसे देना पड़ेगा। Why should that happen? So he didn't patent it in spite of quite a few requests by his own friends. उनके खुद के दोस्त ने बताया, भाई पेटेंट कर लो, नया चीज है। He didn't patent it, and few years later on, Marconi also did the same thing, and he patented it. And when his this thing entry was sent to for the Nobel Prize committee, they gave him the prize. So Marconi got the Nobel Prize for something which he gets credit. I am not denying the credit, but for something that was actually already done before. So these are very traverses of history. In fact, एक interesting चीज मैं बताता हूँ. Around 7-8 years back, मार्कोनी का जो ग्रैंडसन है, ठीक है ना, वो आए थे कलकत्ता के उसी यूनिवर्सिटी में जहां पे जेसी बोस रिसर्च करते थे, और उन्होंने कॉलेज में स्पेशली आए थे इसी वजह से क्योंकि उनका ये मानना है कि हमारे परिवार को ये नोबेल प्राइज मिला जरूर है, लेकिन इसका एक्चुअल हकदार कोई और है। और वो स्पेशली इंग्लैंड से आए थे टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज वेयर ही हैज डन दैट रिसर्च एंड आल्सो द डेमोन्स्ट्रेशन। और उस कॉलेज के जो वो होता है ना, कॉलेज में देखने पहले जमाने में होता था, अब तो खैर ऑनलाइन हो गया, बट पहले ना एक वो होता था, एक बड़ा सा एक क्या बोलेंगे, एक जैसे कई बार देखना मंदिर में भी होता है कि बड़ा सा एक कॉपी टाइप का होता है, उसमें तुम लिख के आ सकते हो कि कैसे लगा, अच्छा लगा एंड सो ऑन। तो इन दैट ही केम टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज एंड हैड रिटन इट लाइक दिस
that I understand that our family has been glorified because of Nobel Prize so and so, because of Marconi and so on. But I have come specially to this particular place as an acknowledgement that the actual deserving person was J.C. Bose, but due to whatever rules and regulations, Marconi got it. It's not that Marconi did not get it undeserving. देखो उन्होंने भी रिसर्च किया, उन्होंने भी रिसर्च करके तब जाके ये सब डेमोन्स्ट्रेशन किया, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और बस जेसी बोस को फोन लगाया, भाई जेसी बोस बता दो क्या करूं, और उन्होंने करके और चोरी कर लिया, ऐसे नहीं. So let's not vilify Marconi and let's not take out the credit of Marconi, but then let's also understand कि what is the actual fact. तो उनका ग्रैंडसन आए थे and he had written it in that particular college portal या book कि हाँ I understand that this was the actual deserving person. but ठीक है, हिस्ट्री में जो भी हुआ doesn't mean that we have to change the history, but yes, at least एक acknowledgement भी होता है तो at least there is some kind of closure. Otherwise Nobel Prize में ऐसे बड़े सारे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे डिस्क्रेडिट क्रेडिट ये सब चीजें हुआ है, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स भी हुआ है. जैसे मैंने बोला ना जेसी बोस तो ये हो गया, एसएन बोस का तो एक्नॉलेज था that he was one of the pioneering persons. In fact, एक टाइम पे वर्ल्ड में ये बोला जाता था कि अगर रिलेटिविस्टिक फिजिक्स अगर किसी को समझ में आता है जेन्युइनली, देखो एक होता है नोट्स पढ़ लेना, वो अलग चीज. तो एक टाइम पे 1920s में ये कहा जाता था कि अगर रिलेटिविस्टिक फिजिक्स जेन्युइनली अगर किसी को समझ में आता है तो वो दुनिया में सिर्फ 3 लोग हैं बस. इमेजिन करो, ओनली 3 people. One was Einstein, one was J.C. Bose, and the third was Max Planck. तो ये 3 नाम लिया जाता था कि these were the only 3 people who genuinely understands relativity. बाकी तो सब ऐसी किताब पढ़ के तो सबको ही देखो knowledgeable हो जाता है ना, that is different thing. जैसे मान लो मैंने कोई नया रिसर्च थोड़ी किया, जो भी मैंने पढ़ा किताब पढ़ा है. That's the only thing. I mean, so like I don't deserve any credit for anything, isn't it? Except for कि चलो थोड़ा किताब पढ़ लिया and that's how I'm discussing with you and so on जितना मुझे आता. But like उनका जो स्टेचर था वो अलग था. They actually genuinely understood the topic. तो उस लेवल के साइंटिस्ट थे वो एक जमाने, और ये वर्ल्ड वाइड फेमस थे. But he was never given the Nobel Prize. Now what was the reason? Reason was that England का बहुत दबाव था Nobel Prize winning committee के कि इंडिया में से जेसी बोस को, सॉरी एसएन बोस को नहीं मिलना चाहिए. क्यों? Because एसएन बोस was actually supporting all those revolutionary movements. ये जितने भी होते थे ना, खुदीराम बोस, फिर और भी जो तमाम भगत सिंह और ये सब जो थे ना, उनको सपोर्ट करते थे एसएन बोस. इनफैक्ट एक आध बार तो ये भी हुआ कि ये लोग जब छुपने आते थे तो उनके घर में छुपे हुए थे और पुलिस को मिला भी था. तो देयर यूज्ड टू बी ऑलवेज अ पुलिस पिकेट नियर हिज होम, देखने के लिए कि कहीं कोई रिवोल्यूशनरी वगैरह लोग आ तो नहीं रहे या छुपने के लिए तो नहीं आ रहे, एंड सो ऑन. So that's why he was the committee was being pressured by England कि इनको नोबेल प्राइज कभी भी किसी तरीके से नहीं मिलना चाहिए. जबकि आज के दिन में देखो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के ऊपर आई थिंक 3 या 4 जनों को नोबेल प्राइज मिला. ठीक है ना, लेकिन जिसने एक्चुअली बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का थ्योरी दिया था उनको नहीं मिला, और उसके बाद जो है 3-4 जनों को मिला है. तो लाइक दीस आर थिंग्स व्हिच आर देयर हिस्टोरिकली. चलो खैर, तो रेडियो वेव्स एक एंड में आता है, उसके बाद आता है माइक्रोवेव्स, उसके बाद आता है इंफ्रारेड, फिर आता है विजिबल, फिर आता है अल्ट्रावायलेट, ठीक है ना, फिर आता है एक्स रे, फिर है गामा रेस, फिर है कॉस्मिक रेस. अब मैं बताता हूं मेंस के रिलेवेंट तुमको क्या करना पड़ेगा. तुमको इनका या तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, व्हिचएवर यू आर कंफर्टेबल, ये इसके रेंज याद करना है, ध्यान रखना. यानी इसका वेवलेंथ रेंज क्या है, 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 इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, ये याद करके जाना है क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं. दैट नाइट विजन कैमरा में जो वेव्स यूज किया जाता है उसका वेवलेंथ किस रेंज में होता है. तो 4 एग्जांपल दे दिए. अब तुमको याद है तो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, और अगर याद नहीं है तो इन दैट केस तो सालों साल लगे रहो बिना हेल्प के, तो कभी भी नहीं कर पाओ कॉन्फिडेंस के साथ, है या नहीं. So therefore please remember the wavelength range or the frequency range, दोनों में से दोनों याद कर लो. खिचड़ी पके वो याद होगा नहीं, एक याद कर लो सो दैट अगर जरूरत पड़े तो एक दूसरे को कन्वर्ट कर सको. स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ, सो अकॉर्डिंगली यू कैन इजीली फाइंड आउट द अदर वन आल्सो. तो अगर फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर लो इन दैट केस स्पीड ऑफ लाइट यूज करके वेवलेंथ रेंज भी मतलब निकाला जा सकता है. तो कोई एक याद कर लो.
और इनके यूजेस याद कर लो, यानी वेवलेंथ रेंज, इनके यूजेस और जनरेशन कैसे होता है, जनरेशन कैसे होता है। जैसे रेडियो वेव्स, दीज आर जनरेटेड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इंफ्रारेड माइक्रोवेव, ये भी उसी तरह से जनरेट होता है। इंफ्रारेड फ्रॉम सन, विजिबल तो सन है, अल्ट्रावायलेट भी सन है, इसके अलावा भी हो सकता है। X-rays are generated when electrons are hit, metal target is hit by electrons, fast moving electrons, तो X-ray produce होता है। फिर gamma rays by radioactivity, we already studied that, and so on. Cosmic rays are rays which come from space, they are not generated on the earth, they come from the space, and so on. तो ये कैसे जनरेट हो रहा है, एक-एक यूजेस क्या है, एक-एक का। रेडियो वेव का क्या यूज है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वगैरह, इस सब के सब। रेडियो वेव्स का ऑब्वियसली फॉर कम्युनिकेशन, दैट यू ऑलरेडी नो, इसलिए नाम रेडियो वेव्स है। माइक्रोवेव रेडार्स में यूज होता है, फिर वो खाना बनाने में यूज होता है, माइक्रोवेव कुकिंग। इंफ्रारेड कैमरा में यूज होता है, जो बॉर्डर में कैमरा लगता है ना, थर्मल इमेज कैमरा, रात के टाइम नाइट विजन कैमरा, तो उसमें इंफ्रारेड यूज होता है। फिर विजिबल तो है ये। अल्ट्रावायलेट रेज, एक तो विटामिन डी वाला है, फिर आई थिंक शायद खाने का प्रिजर्वेटिव में भी कभी कभी यूज होता है, ठीक है, बट विटामिन डी तो है ही है। उसके बाद एक्सरे, एक्सरे तो ऑब्वियसली सैनिटाइज करने के लिए होता है, यूवी चैम्बर। हाँ, यूवी चेम्बर्स में सैनिटाइज करते हैं। हाँ, आजकल सैनिटाइज करने के लिए भी यूज किया जा रहा है, दैट्स राइट। सो कोरोना के प्रोटेक्शन तो उसमें भी यूवी यूज हो रहा है, ठीक है ना। फिर एक्सरे के लिए, एज यू नो, जैसे क्रैक्स इन पाइप्स एंड ऑल, वो सब अंडरग्राउंड पाइप है, तो कहाँ पे क्रैक हो रखा है कैसे पता चलेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होता है, एक्सरे से पता चल जाता है। फिर बोन्स वगैरह वो तो पता ही है, एक्सरे एंड ऑल। फिर एक्सरे पे वो भी होता है, जैसे एक्सरे फोटोग्राफी है ना, फिल्म्स एंड ऑल, तो लाइक एक्सरे के कई सारे यूजेस है। गामा रे इज यूज्ड फॉर ट्यूमर्स, है ना, फिर कैंसर ट्रीटमेंट, या इवन फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज हो रहा है। जैसे आजकल खाना नहीं मिलता है, पालक पनीर मिलता है, देखना 6 महीने तक लाइफ, ऐसे पालक पनीर घर में रखो, रात को बनाओ, गर्मी के टाइम तो अगले दिन दोपहर तक खराब हो जाता है, तो वो 6 महीने कैसे रहता है ना। उसको पहले इरेडिएट कर देते हैं बाय यूजिंग गामा रेज, उससे क्या होता है, जितने भी जर्म्स है सब मर जाते हैं। एंड देन दे आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, कंटेनर्स मींस आइदर कंटेनर और पैकेट्स, वो सील कर देते हैं कि कोई एयर का आना जाना इम्पॉसिबल हो जाए, एंड दैट्स हाउ यू नो इट इज डन। तो लाइक उसमें गामा रेज यूज होता है एंड सो, तो लाइक इनके मल्टीफेरियस, मैंने तो एक एक दो बताया, बट अगर बुक पढ़ोगे तो देखना एक एक के 2 3 3 4 4 5 5 एग्जांपल्स है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रोट लर्न, क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है, एडवांस में नहीं आएगा, मेंस में आ सकता है, सो देयरफॉर बी प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। चलो, आई थिंक आज के लिए इतना ही करते हैं, वी आर ऑलरेडी लाइक बियॉन्ड टाइम। अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, या जब भी नेक्स्ट क्लास होता है कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा और भी बचता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, दैट विल वाइंड अप इन द नेक्स्ट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही फिर।